Hello everyone, welcome to MBA Karo. So MHCT has announced that they will be conducting retest of the candidates, those who faced technical glitches during the examination and those who got extra time during the examination. The list is expected to be released very soon. Now a lot of candidates are asking that is this retest unfair to those who appeared on other slots where things went fine. Okay, so let us discuss that is it going to be an unfair process or not. Okay, so जिनका रिटेस्ट नहीं हो रहा वो सबके मन में ये है कि सबका रिटेस्ट होना चाहिए था. ओके, आइडियली तो होना ऐसे ही चाहिए कि रिटेस्ट हो तो सबका हो, बट लेट्स इवेलुएट दैट वेदर इट इज अ फेयर प्रोसेस और नॉट. So if you are new to the channel, please do subscribe to my channel and also join my Telegram group. So आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, क्योंकि कई लोगों का भी क्लैरिटी नहीं है कि रिटेस्ट किसका होना है. ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे कि हम किसी और स्लॉट में थे, हमारा एग्जाम देर से स्टार्ट हुआ. इट डज नॉट मैटर, आपका एग्जाम आधे घंटे स्टार्ट हुआ, 1 घंटे बाद स्टार्ट हुआ. इफ यू गॉट 150 minutes, you will not be for that retest thing. So only those candidates who face some technical glitch and the timer stopped before 150 minutes, जिन्हें 150 minutes completely नहीं मिले हैं, उन्हीं का होगा रिटेस्ट. ठीक है, आपको 150 मिनट्स मिले, आप किसी भी स्लॉट में थे, आपका आपके सेंटर पे आधे घंटे बाद एग्जाम स्टार्ट हुआ, 1 घंटे बाद स्टार्ट हुआ, 40 मिनट्स बाद स्टार्ट हुआ, या फिर कुछ भी हुआ, बट आपको 150 मिनट्स मिले, सो यू आर नॉट eligible for that retest. Only those candidates who did not get 150 minutes completely. Now this list is to be released soon. They mentioned in the afternoon that they are going to release the list soon, but they have not yet released. So hopefully it gets released as soon as possible, because till 11 of April people have to apply for this thing, right? By the way, application, they won't take any charge for that application. You just have to apply that you want to appear for the retest. Now for these candidates it is optional to appear for the retest. Okay, now maybe you did well on that day. Okay, unexpectedly well, आप सोच के कहते हैं हम 80-90 करके आएंगे, बहुत ज़्यादा करके आ गए, right? So in that case you can opt out, but I would recommend that you should appear for this retest. Okay, so most of the people will appear for this retest, those who faced glitches because they did not get complete time to take the test. Okay, and it is their wish. सी इट इज ओनली फॉर दीज कैंडिडेट्स की देयर विश, राइट? कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि किसी का और स्लॉट में हुआ, दे विश टू अटेंड द रिटेस्ट. नहीं नहीं, जिसके साथ टेक्निकल ग्लिच हुई, टाइमर पूरा नहीं हुआ, टेक्निकल ग्लिच होने के बाद टाइम भी पूरा मिल गया तो नहीं होगा. सो वो विश वाला मतलब ये नहीं कि जिसका विश कर रहा है, मन कर रहा है कि रिटेस्ट, तो नहीं. सिर्फ उन लोगों का जिनको पूरा टाइम नहीं मिला और वो देना चाहते हैं रिटेस्ट. उसमें से कोई ऐसा चाहता है कि नहीं मेरा ठीक ठाक गया, हो गया था, 140 मिनट्स में भी कर लिया था, आई डो नॉट वांट टू गिव, सो दे मे ऑप्ट आउट. But if you found that okay, you got lesser time and you wish to give the retest, then you can get it. So it is optional. So no other people who got 150 minutes will be entitled to take this retest. Then second category of candidates, non PWD candidates. Because PWD के लिए timer होता है 180 minutes. If you are a non PWD candidate and you got 180 minutes instead of 150 minutes, okay, then it is mandatory because your attempt is cancelled. अगर आपको 180 minutes मिले हैं एग्जाम में, so that is cancelled. तो you will have to appear for it, क्योंकि ये आप नहीं दोगे तो आपको वो माना जाएगा आप MHCT का एग्जाम ही नहीं दिया. ठीक है, जो फर्स्ट कैटेगरी वाले वो अगर नहीं देंगे तो माना जाएगा ठीक है उनने उस दिन दे दिया था, सेकंड उनने रीटेस्ट नहीं दिया, सो वो वाला चल जाएगा. बट अगर इस केस में अगर आपको 180 मिनट्स मिला है और आप एग्जाम नहीं देते हो, सो दैट मीन्स आपका स्कोर काउंट नहीं होगा, आप देखोगे लिस्ट में कहीं नाम ही नहीं है आपका. ठीक है, रिजल्ट भी नहीं आएगा. सो यू हैव टू गिव द रीटेस्ट. तो इसके आपको एप्लीकेशन 6 से 11 तक आएगी. नाउ अब इसमें लोग कह रहे हैं कि इनको एडवांटेज हो जाएगा. ठीक है, एडवांटेज है, सेकंड चांस मिल रहा है. अगर मान लो किसी का उस दिन पेपर खराब हो गया था, किसी की तबीयत खराब थी, अच्छा नहीं कर पाया, या प्रिपरेशन पूरी नहीं थी, ठीक है, ऐसे देने चले गए थे, कुछ भी कारण हो सकता है, सो दे आर गेटिंग अ सेकंड चांस विच इज अ बिग थिंग. ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर वो तुरंत हो रहा होता है 1-2 दिन में, दे आर गिविंग 20 एक्स्ट्रा डेज फ्रॉम नाउ. ओके, एंड द वंस लाइक हु हैव बीन इन प्रैक्टिस, जो चाहे सीमैट या किसी और एग्जाम की तैयारी में लगे हुए थे, तो उनका अभी कितने 10 दिन हो रहे होंगे, सो 1 मंथ एक्स्ट्रा फॉर प्रिपरेशन. ठीक है, जो रेगुलर कर रहे हैं, जो खाली यहाँ एग्जाम होने के बाद घूम रहे हैं या फिर इसी में लगे थे कि पेपर खराब है ये सब है, उसके चलो 10 दिन फिर भी चले गए, फिर भी अभी भी 20 डेज हैं. 20 डेज आर गुड इनफ.
राइट। अगर आप मतलब जितना आप परफॉर्मेंस कर पा रहे थे, अगर आप कुछ और मॉक टेस्ट दे दो, 20 days एक्स्ट्रा मिल जाए और आपको पता है कि हाँ ये फिर से चांस मिल रहा है, तो ऑब्वियसली एवरीवन विल ट्राई टू डू गुड. Okay, so they will be able to perform better in this examination. Definitely. But does it give advantage to those students? Let us look at this. That is it disadvantages to others. Now सबका ये सवाल हो रहा है कि अदर स्लॉट कहाँ था, क्या होगा. कुछ लोग कह रहे थर्ड स्लॉट बहुत डिफिकल्ट आया था. ठीक है, देखो कुछ स्लॉट इजी डिफिकल्ट वो वेरिएशन रहता है, विच इज अगेन नॉट द राइट थिंग. होना नहीं चाहिए आइडियली किसी एग्जाम में कि बहुत ज्यादा वेरिएशन हो. आइडियली होना ऐसा चाहिए कि स्लॉट ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए, थोड़ा बहुत वेरिएशन जिसे नॉर्मलाइज किया जा सके. सो द क्वेश्चन इज, विल इट इम्पैक्ट अदर स्लॉट्स? No, it should not, because they should follow normalization across slots. That should be a fair process. क्योंकि मान लो जैसे थर्ड स्लॉट है, थर्ड स्लॉट का डिफिकल्ट आया तो उसके अकॉर्डिंग उनकी मार्किंग होनी चाहिए कि हाँ इसमें इतना स्कोर जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स स्केल अप होने चाहिए. जो स्लॉट इजी आया था, लेट अस से फोर्थ स्लॉट इजी है, तो उनका स्कोर कम होना चाहिए क्योंकि उनके अकॉर्डिंग पेपर इजी था. Right, so normalization should be fair, which does not happen in CET. So I'm sure that once this thing comes up, थोड़े और नोटिफिकेशन के बाद वो भी बताएंगे कि they are going to do the normalization. उन्हें करना चाहिए. लास्ट ईयर बहुत फेयर नहीं हुआ था, एंड उससे पहले भी ऐसे ही होता है कि फेयर प्रोसेस तो नहीं होता नॉर्मलाइजेशन, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट होप दैट दिस इज फेयर. क्योंकि अगर फेयर नॉर्मलाइजेशन होगा तो ये रहेगा कि हाँ आप स्कोर आप बैलेंस आउट कर सकते हैं लोगों का, क्योंकि जो नए देने जा रहे हैं डेफिनेटली उनका स्कोर ज़्यादा आएगा. इसलिए 20 days अगर आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन मिल रही है तो लेट अस से जितने भी लोग जा रहे हैं उनमें से 90% लोग तो बेटर करके ही आएंगे ना. बहुत कम लोग होंगे जो जिनका खराब होगा. मोस्टली पीपल विल improve their score if they're given 20 more days for preparation, and they know that this is a golden chance they've got. Okay, and they also know that what kind of questions have been asked in the examination, and accordingly will prepare on those topics. अभी तक तो ये भी नहीं पता था पेपर कैसा आएगा, जम्बल्ड आएगा, क्या आएगा, किस तरह के टॉपिक्स पूछे जाएंगे. नाउ दे हैव एन आइडिया कि दीज आर द थिंग्स दे आर आस्किंग. वोकैबलरी अच्छी करके चले जाएंगे, ये सब वो टॉपिक्स अच्छे से कवर करके चले जाएंगे जिसमें वीक थे. So that will give them an advantage, extra preparation, knowledge that what kind of questions have been asked, and accordingly they can prepare themselves. So score definitely उनका high होगा. If the level turns out to be अगर level difficult हो गया, that's a different thing. So we should hope that there should be normalization. So they should soon clarify the things. यही होना चाहिए कि उन्हें जल्दी से जल्दी बता देना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, ताकि स्टूडेंट थोड़ा रिलीव हो जाए कि हाँ भाई नॉर्मलाइजेशन है, फेयर प्रोसेस होगा, मार्किंग अकॉर्डिंगली हो जाएगी. अगर आप MHCT का रीटेस्ट दे रहे हो और आप प्रिपरेशन करना चाहते हो कि ठीक है यार एक बार स्ट्रक्चर्ड वे में थोड़ा रिवाइज हो जाए, प्रैक्टिस करना चाहते हो, सो आई हैड अ कोर्स फॉर MHCT which was previously for 6,000, but now I'm selling it for just 1,500. It will have recorded classes, so they were live classes back then. अब वो recorded classes के फॉर्म में. तो आप अगर उसमें एनरोल करना चाहते हो तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन एनरोल इन इट एंड कवर द सिलेबस. इट कवर्स ऑल द टॉपिक्स ऑफ ऑल सेक्शंस, राइट. एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हो, चाहे उसमें क्वांट हो, रीजनिंग हो, VA हो, उसमें RC से लेके ग्रामर से लेके हर तरह के क्वेश्चंस कवर किए गए. सो अगर आपको चाहिए कि स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड करोगे तो कुछ चीज़ें हो सकती है आपके टॉपिक रह जाए या कुछ हो जाए. ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा पूरा आपको सिलेबस मिल जाएगा, अच्छा खासा आप रिवाइज कर सकते हो. उसमें क्लासेस की रिकॉर्डिंग से आप दिन भर देख के उसे प्रिपेयर कर सकते हो. सो दिस इज अवेलेबल फॉर जस्ट 1,500. यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन in order to purchase this. सो लेट्स जस्ट होप कि हमारा ये जो रीटेस्ट वाला सीन है ये थोड़ा फेयर हो, सो दैट पीपल डू नॉट फील कि हमारा पेपर पहले हुआ था, इजी स्लॉट आ गया, डिफिकल्ट स्लॉट आ गया. थोड़ा फेयरनेस होनी चाहिए. लेट्स होप फॉर दैट. Although the hopes are less, last year we have seen that the fair process was not so fair in terms of normalization, but that's what we can do. I mean, we cannot get the internal thing, right? We cannot change those internal things, how they perform the normalization and all, but at least good thing is that the students who face these issues, right, so they are at least given a chance to appear in the test, and wish them all the best. So 20 days में मेहनत करो, but definitely they will give marks according to that कि जो जिस slot में देखेंगे उसके according
उनके मार्क्स नॉर्मलाइज किए जाएंगे. सो दे विल सून रिलीज नोटिस दैट दे आर गोइंग टू do the normalization, and if the normalization is fair, then it is a win-win situation for all those who are appearing in the retest or have not appeared in the retest.